ورنہ یہ مننا پے گا کہ مرزا قادیانی دی قوم جیڑی ہے نبی پاک نو گالاں کڈدی پئی تے سارا دن بیٹھ کے براڈاں لا کے. کوئی اگر ایک بندہ غلط بات کرتا ہے تو اس کو آپ بولو ساروں کو کیوں بیچ میں رگڑتے ہو؟ پڑھنے والے نے کیتی ہے جن نے یہ بکواس کیتی ہے باقاعدہ ہم بستری کرتے تھے. یہ 2 نمبر خلیفہ دا پیروکار ہے حلال زادہ. اچھا اینو حلال زادہ منیا نہیں جا سکتا ہے. بدن سے آمین نظیر دیکھو ہم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اپنا دوسرے نمبر کے خلیفہ ہم ان کو مانتے ہیں. آپ کو یہ بتانے کے باوجود آپ شاطمیت کر رہے ہو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی. کتنے مطلب دیکھیں آپ کی کیا حالت چل پتر تیری امی نو میں دساں شوق ہے استاد بھیجی نا اپنی امی نو بھیجی میں سو دساں گا ایل جی بی ٹی کیو کی ہوندا ہے. تنی تک گزر گیا نا تو سمجھ آ جائے گی. چل لگا سامنے حدیث لگا. ایک بات بتائیں یہ جو عامر نذیر نے کہا تھا کہ جنگ بدر میں حضور صلی اللہ علیہ صاحب ہن میں پیانا اینو چپ کراؤ. ٹروتھ سیکر نو تھلے لاؤ. اینو مڈریٹر تساں بنائے ہیں تے نتیجہ تے آئی آمنے نا وہ حملہ کرن نہیں پہ دیندا ہے. اس بارے میں چپ کے تھلے مار دا ہے کہ نہیں یہ ملک ایسا صاحب شاطمیت ہے کہ نہیں؟ مڈریٹر ہٹاؤ. تانوں بار بار کیا جا رہا ہے مڈریٹر ہٹاؤ. مڈریٹر ہٹاؤ. بناؤ جو آپ کو اچھے لگتے ہیں وہ بناؤ. غوث پاک تسی جڑا ہے اس کی جو چیخیں نکل رہی ہیں نا اس لیے کہ یہ مجھے بات نہیں کرنے دے رہا. ملک ایسا مجھے بتائیں یہ شاطمیت ہے کہ نہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ جنگ بدر پہ انہوں نے کافروں پہ حملہ کرنے کی پہل کی تھی. ہاں جی اچھا اس کا بتائیں یہ شاطمیت ہے کہ نہیں؟ ملک ایسا صاحب منافقت کرنی ہے اب آپ نے. بخاری 302 اللہ صاحب میوٹ نہ کرو. اینو کہو معافی منگے جیڑی نے بکواس کیتی ہے. معافی مانگ لے اب مانگ لے جیڑا نے بکواس کیتی ہے معافی منگے. باقاعدہ ہم بستری کرتے تھے. اس لانتی نے بکواس کیتی ہے. باقاعدہ ہم بستری کرتے تھے. اس لانتی نو کہو معافی منگے احتساب دے سامنے. مولوی مباشرت کا معنی کی ورنہ مننا پے گا مرزا قادیانی گندی ضروریت چھڈ کے گیا نبیوں دے بھونکن واسطے. انہاں جو شاطم رسول جو ہے نا عجیب ہی ہے یار. یہ حضرت مسیح مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی شاطمیت کرتا ہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی شاطمیت کرتا ہے. ہر رسول کی شاطمیت کرتا ہے. شاطم رسول نہیں رکتا. کسی رشتہ یہ جو دار عامر نذیر جیسا شاطم رسول ہے نا یہ ہر رسول ہر نبی کی شاطمیت کرتا ہے بندہ. ملک صاحب مڈریٹر تو ہٹاؤ. اس نو مڈریٹر تو ہٹاؤ. اب دیکھو دے نہ میں لکھی ہے نہ تیلی نے لکھی ہے. او پھر ختم. ملک ایسا صاحب مجھے ایک بات بتائیں. مڈریٹر تو ہٹاؤ. عامر نذیر نو تے لو تے حدیث پڑھاؤ. جنگ بدر پہ حضور صلی اللہ علیہ ملک صاحب آپ ٹھنڈی صاحب دے دو تے حدیث پڑھاؤ. حملے میں پہل کی یہ شاطمیت ہے کہ نہیں یہ بتائیں. جوتی لا کے رکھو. اس دے منہ تے مارے گوں والی ڈبڑی ہوئی نا مرزے دی گوں والی ڈبڑی جوتی تے منہ تے مارے. تیرے ان کے 3600 ملدے ہیں مینوں دیہڑی دے وچ. مرزے دی گوں والی ڈبڑی بدماش تیرے ان کے 3600 ملدے ہیں مینوں دیہڑی دے وچ. ٹروتھ سیکر صاحب تسی صحیح ایمبولینس بنے ہوئے تھے لاش چک کے لے کے جانا چاہ رہے ہو. تسی بھی جڑی گل کیتی ہو ہم بستری والی انہاں کو معافی مانگن گل مکان ہے. نہیں ایک منٹ ایٹ ٹائم ایک منٹ مجھے بات کرنے دیں. ترجمہ حدیث میں لائیے سامنے جنوں مندے او دا واسطہ زین العابدین دا او بھائی او وڈے مومنو ایک منٹ حدیث دکھاؤ. السلام علیکم. حدیث دکھاؤ. اگر کسی کی ذمہ داری ہوئی ہے انہوں نے بات کی ہے تو میں معافی مانگتا ہوں. مرزائیاں دا یہ حدیث ہے لوک امید شاطم رسول ہے. پڑھ ترجمہ مرزائیاں دے یہ نہ تے بھی لعنت پا. پھر چل پڑھ ہن اس نو. اچھا جی کیا بچے والی بات کرتے ہو. میں ایک منٹ آر احمد صاحب بات یہ ہے کہ یہ انہوں نے ایک صحیح بخاری کی 302 ہے جس میں عربی میں لفظ مباشرت کا ہے. ٹھیک ہے. اب اس کا ترجمہ وہ کہہ رہے ہیں ہم بستری. یہ اور یہ ترجمہ اس طرح کا ترجمہ کیا ہے دوسرے لوگوں نے. باقاعدہ ہم بستری کا مطلب سمجھتے ہو آپ؟ نہیں ایک منٹ. باقاعدہ ہم بستری کا مطلب سمجھتے ہو کیا ہوتا ہے؟ او چلے پڑھ لیتے ہیں نا پھر سمجھ لیتے ہیں نا بھائی. اچھا چلے پڑھ لیتے ہیں. پڑھنے دیں 2 منٹ پڑھنے دیں بھائی. اچھا چلے آرام سے پڑھ لیتے ہیں. ہم میں سے اسماعیل بن خلیل نے بیان کیا. انہوں نے کہا علی
अली बिन मसहर ने हमें बतलाया, अली बिन मसहर ने हमें बतलाया, उन्होंने कहा अबू इसहाक शियानी ने हमसे बयान किया, उन्होंने अब्दुर्रहमान बिन असवद से, अब्दुर्रहमान ने अपने बाप से, इनके बाप ने हज़रत आयशा से रिवायत। कितने चले गए हो? बड़ा करो मैं छोटा नहीं पढ़ सकता मैं। नासना ट्रुथ सीख रहा थुक सीकर निकाह ना कर मैनू। ओए चुप 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 और चुप, हौसला करो, केड़ा बोल रही। जब कोई हायजा होती और रसूल, अच्छा हायजा होता पीरियड्स, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके साथ बदन से बदन लगाकर लेटना चाहते तो आप इसको तहबंद बांधने के लिए फरमाते। केड़ा मॉडरेटर हराम दी नस्ल है जेड़ा मैं निकाह करदा है, जेदी मां कोल पड़ोसी सुत्ता है और हरामी पैदा ओए है, केड़ा मैं छोटा करदा है। ओए ज़बान अपनी मुंह च रख दे, हदीस सामने खुली हो। ना गाला केड़ा इस्लाम पेश कर रहे हैं सालिया तू। अदे हदीस सामने खुली हुई है फिर भी बक बक कर रहे हैं। देख ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਬਕਾਇਦਾ ਹਮ ਬਿਸਤਰੀ करते थे, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁਣ ਬਕਾਇਦਾ ਹਮ ਬਿਸਤਰੀ करते थे। अच्छा गाल सुन मेरी, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਦਨ ਦਾ ਮਿਲਾਨ ਦੇ ਜ਼ਰਾ। ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਟਿਬਰੀ ਨਾ ਢਿੱਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਹਮ ਬਿਸਤਰੀ ਫੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਨੂੰ। ਇਹ ਤੇਰੀ ਅੰਮਾ ਨਾਲ ਅੱਬਾ ਇੰਜ ਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੇਰੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਦਨ ਨਾਲ ਬਦਨ ਦਾ ਥੋੜਾ ਮਿਲਾਨ ਦੇ। चल सुन्नियों की किताब में, सुन्नियों की मोरी किताबों देख, में तेरी मोरी 2 इंच खुली ना हो गई तो गल करी फिर। ਤੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁੱਲੀ ਹੋਈ ਸੀ 15 ਦਿਨ ਖੂਨ ਆਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਕੌਣ ਬੰਦ ਕਰੇਗਾ? ਉਹ ਨਿਦਾ ਨਸਰ ਦੀ ਹੋਈ ਉਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। इधर कुछ लोग मौजूद हैं, इधर कुछ बेहतर लोग मौजूद हैं। आर अहमद साहब हैं, आर अहमद साहब हैं, सच्चा आलिम साहब हैं, ये लगता है कि बेहतर तरीके से बात करेंगे। जी जी, सुन्नी कायदानी भाई भाई है भाई, कोई मसला ही नहीं। अच्छा चलें, आप एक मिनट रुक जाएं फिर। आर अहमद साहब आप बताएं। सर बात सिर्फ ये हो रही थी कि हम बाकायदा हम बिस्तरी का जब हम बात करते हैं वो सभी को पता है, यहाँ पे कोई बच्चा तो बैठा नहीं कि बाकायदा हम बिस्तरी का क्या मतलब होता है। ठीक है, आपसे एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, वो हो जाता है रवानी में, कोई ऐसा मसला जरूरी नहीं कि उसका मतलब वो हो जो आप कहना चाह रहे हैं। वो सर दुनिया की किसी डिक्शनरी से निकाल के दिखा दे, किसी तफसीर से निकाल के दिखा दे। कभी तो हक की बात किया करो। सर दुनिया में किसी किताब से निकाल के दिखा दे कि बाकायदा हम बिस्तरी का मतलब तहमद बांध के करना। मुबाशरत का मुबाशरत के मानी किए हैं, मुबाशरत के मानी। अच्छा मुबाशरत के जो लफ्जी, मुबाशरत के जो लफ्जी मानी है ना, वो यही होते हैं बदन से बदन का मिलना। सर आगे जो आपने बताइए नीचे उन्होंने ब्रैकेट्स के अंदर बाकायदा मुबाशरत का तर्जमा भी कर दिया कि यहाँ मुबाशरत से क्या मुराद है, उन्होंने नीचे बाकायदा लिखा है। अच्छा ये साहब के अकीदे के मुताबिक हलाला जो होता है ना, उसमें तकलीफ का जरूरी होता है। एक बिस्तर पे सोना, हाँ वो मुबाशरत थोड़ी अलग से है। जब वो ये हलाला करते हैं ना, ना करो ना करो। लुकमान भाई एक मिनट रुके, तसल्लुल साहब को बात करने दें। अच्छा अमान साहब, अच्छा नहीं, आर अहमद साहब एक मिनट रुके ना, आर अहमद साहब एक मिनट रुके, आर अहमद साहब एक मिनट रुके, सुन लेना, आर अहमद साहब एक मिनट रुक जाए। सुने मलक साहब आप और आपका भाई, आप और आपका भाई एक चारपाई पर सोते हैं, तो क्या कह सकते हैं कि आपने हम बिस्तरी सुन्नी और कायदानी भाई मलक साहब बात करने दें, मलक साहब को बात करने दें। अल्लाह साहब एक सवाल मैं ਤੁਹਾਨੂੰ सिर्फ पूछना है, क्या ਤੁਸੀਂ रमजान ਦੇ ਵਿੱਚ या मलक साहब आप बात करें, वो जो अभी आप बात कर रहे थे हम बिस्तरी के बारे में, जो आप बात समझे वो बताएं। तल्ला साहब एक मिनट यार हमें बिस्तर पे लेटा है, मैं ਤੁਹਾਡਾ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਓ। ਇਹ ਜੋ ਕੋਈ ਹੈ ਨਾ ਗੰਦਮੰਦ ਨੂੰ ਖਮੋਸ਼ ਕਰੋ। मैं तल्ला साहब को बात करने दो यार, ना करो यार, ना मॉडरेटरों की प्रॉब्लम है सुन यार। अच्छा मलिक साहब आप बात करें, मॉडरेटर को हटाओ इन्हों नु। यार बात क्या, मॉडरेटर एक बंदे को बनाओ ना, सही बंदे को, सबको हटा दे। जो ਕਾਦੀਆਨੀ ਦਜਾਲ ਲਾਂਤੀ ਨੂੰ ਹਲਾਲੀ ਤੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਲਓ, ਪਹਿਲੋਂ ਹਰਾਮ ਦਿਓ ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਉਹ ਪੁੱਤਰ। वो क्या साबित करें, क्या लोग हैं यार ये। हाँ जी बताएं मलिक साहब, आप जो बात कर रहे थे वो कर लें। मुझे एक बात ज़हन में बिठा लें कि मोहम्मद सल्लम कुरान मजीद दोनों का संज है, तो आप कोई ऐसी बात साबित करने की कोशिश करो जिसमें उनकी इंसल्ट होती हो या कुरान के खिलाफ हो, तो ये ना करो। नबी, अल्लाह का नबी रसूल कैसे कुरान के खिलाफ काम कर सकता है? अगर आपको ऐसी कोई समझ आ रही है तो हारो, कहो कि हमारी जो हम समझ रहे हैं वो समझने में गलती है, या जिसने तहरीर किया है तहरीर में गलती है। नबी रसूल क्या अल्लाह के कलाम के हट के कोई काम कर सकता है?
सवाल ही नहीं मलक पैदा साहब होता, मैं ना तो खुद करो। ये कहता हूँ कि जो हदीस वो आपको नहीं कह रहे लुकमान साहब, उन्होंने आर अहमद साहब को समझाया है, आर अहमद साहब को समझाया है। हम बिस्तरी का जो लफ्ज वो बता रहे थे कि हम बिस्तरी का ज़रूरी मतलब ये नहीं है कि जो वो आर अहमद साहब समझ रहे हैं। इनके असल में अपने जहन गंदे हैं ना, मैं तो वो कह रहा हूँ ये कि दुनिया अपने समझा जहनों के सोना, मुताबिक देखते हैं ना एक बेड पे सोना हम भी स्त्री का मीनिंग असली यही है। अभी आगे अब कादियानी सुन्नी मैं तो कह रहा हूँ भाई कैसे से जो मर्जी निकालते रहे। मलक साहब असल ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ भाई है तो अरबी में मुबाशरत का लफ्ज आया है, उसके मानी हो रहे हैं, क्या हो गया भाई आर अहमद ਇਹ साहब? ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਹਲਾਲਾ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਹਲਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੱਖਦੇ ਹੈਗੇ लुकमान ਆ कि साहब आप बात आगे फिर ना ये जाएं, रखे हुए हैं लुकमान साहब एक मिनट रुक जाएं, एक बात तो होने दे। एक उन्होंने आपके सामने बताया है मुबाशरत का लफ्ज आया है, मुबाशरत के लफ्ज के लिए उन्होंने कहा है कि हम बिस्तरी उस पे मतलब है ऊपर बेड पे मियाँ बीवी का लेटना करके मियाँ बीवी का हाँ जी, मलिक बैठ लेटना, उसका ज़रूरी मतलब वो नहीं है कि आप आगे से जो मतलब बना रहे हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वही मतलब हो। करने दो, एक मिनट बात करने दो, मुझे बात करने दो। हेलो ਤੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਆਇਆ ਬਾਤ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ, ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ, ਤੂੰ ਮਰਜ਼ਈ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਐਡੇ ਛੁਪ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕੀਆ ਕਰੋ। अच्छा हाँ जी कादियानी मलक और साहब, सुन्नी में फर्क क्या ओ है? यार बढ़ गया, तू मरज़ई है, तेन सारे नु पता है। ऐड ड्रामे ना लाते, बच्चा कोई नहीं बैठा। अब मलक कैसर साहब, हाँ। अब एक मिनट रुक जाएं। अब आर अहमद साहब, मैंने अब आपसे सवाल करना है, जो अच्छा आप अगर अपने जंगे बदर पे ये कहा आप था, जब एक मिनट मलक कैसर साहब, मैंने तो सिकर साहब, आप जो अपनी अम्मी के साथ लेटते हो तो उसको हम बिस्तरी कहते हो? पहले ये बता दो मुझे सिर्फ। आप अगर अपनी अम्मी के साथ लेटते हो तो उसको हम बिस्तरी कहते हो? बरेलवी होते ना तो क्या फर्क है सुन्नी और कादियानी? बताओ। कादियानी और सुन्नी में क्या फर्क कितने है? आज बराड़ दा कल करन नहीं पियोंदी है। मैं की करा यार, नहीं तेरे ਤੁਸੀਂ ਛਣਕਣਾ ਕਰੋ, ਆਖਿਆ ਮੋਡरेटर हटाओ सारे, मैं की करा? तुम्हारे जैसे गंदे बंदे के आगे ये ए वेखो, ए वेख लो गलीज, ए गलीज पैदावार जुरीयत छड्डी पिछे, एदी गल सुन लो। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੋਡरेटर हटाओ, गल करन नहीं देते बार-बार। वैसे तू थले रवे तो चुप कर जाओ ना एक मिनट। आर अहमद साहब, अब मुझे एक बात बताएं कि जब अल्लाह साहब, नज़ीर साहब ने ये अल्लाह साहब, मैं बयाना मॉडरेटर हटाओ, नज़ीर साहब ने मॉडरेटर हटाओ। हमें नज़ीर साहब ने जब ये कहा था, आज इस मरजाई को माफी मंगानी है जिन्हें जुल्म किया है, बकवास की है मासूम नबी दे बारे, उम्मुल मोमिनीन दे बारे। आज इस मरजाई को माफी मंगानी है, ਇਹਨੇ जो कुछ किया है ना, तुम्हारे किताब में मॉडरेटर लिखा हटा है दो ना, प्लीज। कुत्ती के बच्चे, मैं गल करना, तुसी गल करो, सिर्फ दो बंदे गल करने हैं। एक मिनट ਇਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕਰੋ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੱਲੇ ਸਾਹਿਬ। वो तुम्हारी किताबों में लिखा है वो तुम्हारी किताबों में लिखा है, कुत्ती के बच्चों। अच्छा अपन आमिर साहब होना ना, उन्हें को सिर्फ ये पूछना मैं क्या की है, ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਹੈ ਪਲੀਜ਼। ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਮਿਰ ਵਾਬੀ ਦਾ ਲਵਾਤਨ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨਸ਼ਾ ਟੁੱਟ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਮ ਨਬੂਤ ਦਾ ਮੁਜਾਹਿਦ ਫੜ ਕੇ ਦਵੋ, ਇਹਦਾ ਲਵਾਤਨ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਪੂਰਾ ਕਰਾਓ। ਆਮਿਰ ਵਾਬੀ ਦਾ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜਨੇ ਆਂਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਮਰਜ਼ਾਈ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਅਬੂ ਜਲਦੀ ਜ਼ੁਰੀਅਤ ਆ ਗਿਆ, ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਨੁਤਫੇ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟੋ। ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਇਹ ਅਬੂ ਜਲਦੀ ਜ਼ੁਰੀਅਤ ਆ ਗਿਆ, ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਨੁਤਫਾ ਪਿਓ ਦਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, 4 ਸਾਲ ਪਿਓ ਦਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਰਾਜ इस्लाम की तबलीग कर यार कादियानी देवबंद भाई भाई है, भाई सुन्नी कादियानी भाई है, एक ही किताब है सबके। और भाई मैंने तो ये सिर्फ ये पूछा है, देखे बात सुने, मैंने कहा क्या है, अपने पास कोई बात नहीं की। एक हदीस मेरे सामने थी, वो पढ़ के सुनाने की कोशिश कर रहा था बस। हाँ तो ये बोलते आगे से गुस्सा ना मेरे खुद के अल्फाज हैं कोई, ना कोई और बात है। हाँ तो इनको ये कुत्ती के बच्चे, इनको यही समझ नहीं आता ना कि किताब किसकी है, किसने लिखी है, उसको जाके बोलो ना। ना हदीस मेरे से रिवायत है, ना मैंने लिखी है, मैं पढ़ने पे भी हदीस, इनकी हदीसें भाई बहुत सारी गंद किचरा है, सब पता नहीं क्या से क्या लिखा हुआ है इन्होंने। ये भाई है भाई, कादियानी सुन्नी वहाबी भाई। अच्छा मैं एक सवाल करना चाहता हूँ आर अहमद साहब से। आर अहमद साहब, मुझे एक बात बताएं कि जब आमिर नज़ीर, एक मिनट यार, शराबी है मरज़ई ਨੂੰ ਲਾ ਦਿਓ ਥੱਲੇ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਮੋਡरेटर ਹਟਾਣੇ ਨੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਆਇਆ ਕਰੀਏ? ਬਸ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ।
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਆਨੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੋਡਰੇਟਰ ਹਟਾਣੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੱਸੋ। गाला नहीं कटोगे तो तुम नहीं उतरोगे। ਹਾਂ ਜੀ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸੋ। जी जी ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਨੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੋਡਰੇਟਰ ਹਟਾਣੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। मैं हटा देते, सारे हटा देते, सारे हटा देते। ਫਿਰ ਆਮਿਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੋ ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੋ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। कौन पे चुकता है जेड़े 2-3 छोड़े। सब खत्म करो फिलहाल। सारे मॉडरेटर खत्म करो फिलहाल। वो खत्म कर देते हैं मलिक साहब ने। गश्ती मारा बच्चा बार बार थले लांदा भैन नू लंड लैणे आ हराम दे ट्रुथ सीकर भैन नू लंड तेरी नू मारा मैं दज्जाल दा मजा ना लियो। मलक साहब मैं की तमाशा लवाया होया जी। ਇਹ ਗਾਲੀ ਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਕੋਲੋਂ? ਉਹਨੇ ਗਸ਼ਤੀ ਦੇ ਬਾਲਾ ਥੱਲੇ ਭੈਨ ਨੂੰ ਲੱਦ ਤੇਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਐਡੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਡ ਹੋ ਗਏ। ਛੋਲੀ ਆਵੇ ਕੰਜਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰੋ ਮਿਰਜ਼ਾ ਇਹ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਾਇਆ 600 ਖਾ ਕੇ ਨਸਿਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਹਟਾਓ ਸਾਰੇ ਮੋਡਰੇਟਰ। ਇਹ ਮਲਕ ਦੀ ਭੈਣ ਫੜ ਕੇ ਪਵਾਉਂਦੀ ਏ। आप लोगों के अंदर खुदा का खौफ ही नहीं है। सबसे पहले मस्ती आज के दिन एमडीयू ने की है। ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, मना करता रहा हूँ। फिर ओ भाई खुद कांच के घर में आप लोग रह रहे हो, लोगों के घर में पत्थर क्यों मार रहे हो? खुदा का खौफ ही नहीं है आप लोगों में यार। माँ बहन की गालियाँ, नबियों की गुस्ताखियाँ एक दूसरे के साथ, वो आपके कर रहे हैं, आप उनके कर रहे हो। कौन सा तरीका है यार ये? पहले इसीलिए समझाता हूँ कि ना पंगे लो। कांच के घर में रह के लोगों के घरों पर पत्थर मत मारो। मैंने भी गालियाँ दी हैं, लेकिन वो मुझे खुद ज़ाती तौर पर पर्सनली हो गया था। मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। लेकिन दीनी ईमानी मामलात में ऐसी बुरी बात है, गुनाह है। ज़ाती तौर पर जब वो कोई किसी को कहता है तो इंसान है, उसका जवाब दिया जाता है। लेकिन पहल करना कहाँ का तुक है? खुदा के बंदो 2 घंटे हो गए आप एक दूसरे को गालियाँ। कोई इल्मी बात है वो करो। औरतें भी बैठी हैं, मेरी भी ज़बान से गालियाँ निकली हैं, लेकिन आपके सामने वो ज़ाती तौर पर पर्सनली हो गया था। मैं यूं कर दूंगा तो यहाँ कर दूंगा। वो टिक टाकी ये बदमाश मैं रोज़ देखता हूँ, 5, 10, 15 रोज़ मेरे पास आते हैं ये टिक टाकी बदमाश। खुदारा ऐसा ना करो। जब ईमानी मामलात में आप बात करते हो तो अदब एहतराम सबसे पहली चीज़ फ़र्ज़ है ईमानी मामलात में। वो आप लोगों को पता ही नहीं है। फलाना यूँ हो गया। जब आप लोगों को छेड़ोगे, लोगों के घरों पर पत्थर मारोगे तो आपके घर पर पत्थर आएंगे। फिर पीड़ होती है, हाय क्यों पत्थर आ गए? पहले पंगे ना ले ना। आपको पता है वो लोग कैसे हैं, लेकिन इसमें आप लोगों का हाथ शामिल है। आप पहले करते हैं, इखलाक से गिरी हुई बातें करते हैं, फिर जब आपके घरों में पत्थर लगते हैं फिर पीड़ होती है, होने हो गया तो हो गया। ये बुरी बात है यार। खुदारा जो एमडी और बराड़ लगाते हैं 3-4, उनकी बराड़ पर एक गाली जाके दो, उतार के नीचे फेंकेंगे आप लोग। ये पता नहीं बराड़ इसका कोई ना वाली है ना वारिस है, जो मर्जी है गालियाँ बकता रहे। मैं सीधा बंदा हूँ, आप लोगों को समझाता रहता हूँ कि ना करो यार, ना करो। खुदारा ऐसे ना करो, ईमान और इल्मी बातें करो। गाली गलौज से क्या ईमान और आपके अकीदे ठीक साबित हो जाएंगे हमारी तरफ या उनकी तरफ से? तो मेरे भाइयों ना ऐसे पुट्ठे काम करो। खुदारा ना पुट्ठे काम करो, इज्जत करो और करवाओ। अगर आप चाहते हो कि आपकी इज्जत की जाए तो लोगों की इज्जत करना सीखो। हमारी तरफ से हो या उनकी तरफ से हो, दोनों बराबर हैं। मैं तो इसमें दोनों में फ़र्क नहीं समझता। दोनों एक दूसरे को गालियाँ बक के समझते हैं, ऐसे बड़ा मैदान मार ले।
खुदारा ना करो, ना करो। अभी मैं एक एक को ऊपर ले रहा हूँ, जिसने आना चाहता है 100 बार आए, अहमदी है या गैर अहमदी है, लेकिन इखलाक से गिरी हुई जिसने बात की, अब 1 सेकंड के लिए नहीं चांस होगा और उसको उसके बाद नहीं उठाऊंगा ऊपर। 100 बार आओ, अपनी बात करो, इल्मी बात और अकली बात करो। गाली गलौज औरतों की तरह तू पैड़ी, तू भी पैड़ी, मैं तेनू जाननी है, तू भी मैनू जाननी। ਹੁਣ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਮੋਡਰੇਟਰ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ सबको हटा दिया यार। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨੇ ਆ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ। मेरी मारनी ने ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਾਲ ਕੱਢ ਸਕਦਾ, ਸਵਾਲ ਹੀ नहीं। मैनू गाल हो यार, जब आप हमारे नबी को, हमारे दीन को गालियां बकते हैं, उनकी भी गलती है। मैं आपको अकेले को नहीं कह रहा, दोनों, आप भी ऐसे हो तो वो भी ऐसे। ਅੱਛਾ ਆਮਿਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੋ ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੋ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੀਏ, ਗੱਲ ਮੁੱਕੀ। आ गए आमिर भाई, बस ਅਸੀਂ ਹੁਣ एक बात सुन लें आमिर साहब, मॉडरेटर मैंने हटा दिए हैं। आप इल्मी और इखलाक के अंदर रह कर जो आप करना चाहते हैं बात करो, लेकिन इखलाक से गिरी हुई बात को सुने प्लीज। इखलाक से गिरी हुई कोई बात करेगा अभी इसके बाद मैं उसको नीचे उतार दूंगा, फिर आज के दिन नहीं उठाऊंगा, ये पहले बता रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अंदर रह के जो मर्जी बात करें, आप करें या अहमदी करें, जो मर्जी। अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल ठीक है। मेरा सिर्फ इतना ही मुतालबा है, वालेकुम सलाम, मेरा सिर्फ इतना ही मुतालबा है कि जो लफ्ज उसने कहे हैं किसी बंदे से पूछ लें, और जिसकी आईडी लक हबीद है यार, उसका नाम ओरिजिनल मेरे ज़हन में घूम रहा है, कोई एक तो नहीं ना, सारे इसी तरह के हैं, लेकिन बहरहाल वो लक हबीद जो फिर वही लैंग्वेज इस्तेमाल फिर वही हरकत की है इसने। ये मेरा कहने का मतलब ये है कि एक करता है, दूसरा उसका दिफा करता है। सबको चाहिए ना उसको कहे के अल्फाज वापस ले। अगर कोई बंदा उसका दिफा करता है, इसका मतलब सारे में आती हैं उसके। यार आमिर साहब, अभी फिर वही काम करना है तो मैंने जो आपने अपनी तरफ से माजरत की है, मैंने सुनी है तल्लत साहब, आपने मुझे पता है माजरत की है, लेकिन आपका कसूर नहीं है इसमें। कसूरवार तो वो बंदा है या वो है जो इसको प्रोटेक्ट कर रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप उसको ऊपर बुलाएं और उसको कहें कि यहाँ पर हम बिस्तरी के ना लफ्ज है, ना हम बिस्तरी का मानी है। हमारी जुबान में, एक मिनट मुझे बात कर लेने दें, हमारी जुबान में जब कोई बंदा ये कहता है कि मैंने फलां औरत के साथ हम बिस्तरी की है, उसका मतलब इंटरकोर्स होता है। और इसने जो लफ्ज बोले हैं वो वहाँ आपकी अपनी हदीस में भी लिखा हुआ है कि मुबाशरत के दिन, हैज के दिनों में जो मुबाशरत नबी अलैहिस्सलाम अपनी बीवियों से मिलाते, उसका मतलब ये है बगलगीर होना, बोसो कनार करना। वो हम भी करते हैं अपनी बीवियों से, हैज में होती हैं, हम उनसे बगलगीर भी होते हैं, हम उनसे बोसो कनार भी करते हैं, हम उनसे बदन से बदन मिलाते हैं, लेट जाते हैं कई दफा। तो हम बिस्तरी का भी यही मतलब है, और क्या मतलब? हम बिस्तरी का ये मतलब है तल्लत साहब जी, हम बिस्तरी का ये मतलब है। देखे हमारी लैंग्वेज में और मतलब है, इसमें कोई और राय नहीं है, लेकिन असल में असली जो मेन चीज है ना, वो यही होती है बिस्तरी के किसी के साथ सोना। मलिक साहब ये जो तारीफ कर रहे हैं ना हम बिस्तरी की, ये हलाले की पॉइंट ऑफ व्यू से इनके मकतब फिक्र के मुताबिक बिल्कुल ये देखें अब ये देखें बात किधर जा रही है। इनके मकतब फिक्र के मुताबिक जो आपके मकतब फिक्र में बातें मैं निकाल के दूंगा आपको, इन बातों का कोई फायदा नहीं है। हलाले में, अच्छा आमिर साहब आप बता दें हलाले में, आप बता दें 2.5 साल की बच्ची जो ब्याह के लाए थे मुबारक अहमद के लिए, वो किस लिए लाए थे? उसके साथ हम बिस्तरी की थी मुबारक अहमद ने, जो तुम्हारे नहीं फिर बकवास करने लग गया। ओ यार फिर मैंने अच्छा मेरी बात, मैं लानत भेजता हूँ हलाला करने वालों पर, करवाने वालों पर। अल्लाह के नबी ने उन पर लानत भेजी है, मुझसे ये मंसूब कर रहे बातें। एक मिनट मेरी बात सुने, आप इनकार कर दें, आप इनकार कर दें, होता नहीं है, हो जाता है। अगर कोई औरत को छोड़ता है, मैं कह रहा हूँ जो जानबूझकर करने कराने, शादी करती है, शादी करके फिर उनके मियाँ बीवी में कोई आपस में हलाल हो जाती है, वो तो नेचुरली हलाल हो जाती है औरत, वो और बात है। हलाले का मेन मकसद ये है, जो दूसरे हलाले हो रहे हैं इसका ईमान नहीं मुबाशरत, ये तो लानती लोग हैं ना। अब ये पूछें कि ये जो इसने लफ्ज बयान किए हैं कि उम्मुल मोमिनीन ने फरमाया कि वो बकायदा हमके साथ, हमारे साथ हम बिस्तरी करते थे, किसको कहें कि ये माफी मांगे अपने लफ्जों की? मैंने मुबाशरत की बात की थी।
सबसे मेन बात जो ये मतलब निकालेगा, इसका मतलब है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल ही नहीं है। कुरान से हटकर जो बात करे वो कैसे रसूल हो सकता है? आपकी सोच में, समझने में या तहरीर करने वाले में गलती हो सकती है, अल्लाह के तहरीर करने वाले में गलती है। तो कहीं अपने लफ्ज वापस ले, तहरीर में ये बात नहीं है कि वो बाकायदा हम बिस्तरी करते थे, बल्कि वहाँ पर वजाहत मौजूद है मलक साहब ये मानी गाल कढ़ी है हुण लांती लांती कहते हैं। इसको कहें कि बात वापस ले अपने। बेशर्मा ना करो, बेशर्मा गैरत है ने, थोड़ी जी गैरत ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੇ ਹੱਥ ਬੱਦੇ ਕਿ ईमान और अकल ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, इखलाक ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ करो। मलक साहब मैंने फिर बिजी हो जाना है, इसको कहें कि ये अपने लफ्ज वापस ले और माजरत करे कि मैंने बाकायदा हम बिस्तरी का लफ्ज तल्ला साहब आप ना कहें, तल्ला साहब आप ना कहें, इसको समझ आने दें। ये दूसरी ब्रांड पे जाके फिर यही हरकत करेगा, वहाँ कौन माजरत करेगा? आप ना करें माजरत। आमिर साहब गल सुनो मेरी, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਮੁਬਾਸ਼ਰਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੈਂਦੇ? लो एक जाएगा जो डिक्शनरियां खोलेगा, लुगत खोलेगा, भाई हम बिस्तरी का मतलब होता है इंटरकोर्स करना। जो आपने लफ्ज बोले हैं ये वहां पर बात नहीं है कि बाकायदा हम बिस्तरी करते थे। एक नजायज हलाला होता है, एक जायज हलाला होता है। आपके मकतबा फिक्र में साहब आप बात करें, आप ये बताएं, आप बात करें, मैं बिजी होना, फिर जल्दी बात खत्म करें। एक मिनट इजाजत देते हैं। बात ये है कि उन्होंने अपने तरीके से वो कह रहे हैं कि मेरा मकसद ये नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि लोगों ने ये मतलब अपने अकल में ये चीज उनके आ गई है कि आपने ऐसी कहा है, माफी मांग, सॉरी कर ले, इसमें क्या है? नहीं मलक साहब, ये अपना इल्म बढ़ा ले ना। मैंने जो बात की उसका मकसद ये नहीं था, ये था मतलब मैं आपका कहने का मतलब ये है कि जो आमन नसीर के इल्म में नहीं है, मैं उस चीज पे माफी मांग रहा हूँ। यार नहीं, ऐसे नहीं, बात इस ये नहीं है। सिर्फ हमारे नबी हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान, मैंने कब इस चीज का इनकार किया है? मैंने तो एक हदीस पढ़ी थी, उसका तर्जुमा लगा हुआ था। जा रहे आमन नजीर साहब को उस माफी कर ले भाई, मैंने ये नहीं बात की यार, सॉरी यार। भाईजान मैं इनके बदले में चलो ठीक है मलक साहब, आपकी बात रखता हूँ। चलो आमन नजीर साहब, मुबाशरत का मतलब जो इसमें लिखा हुआ था, जो मैंने पढ़ा, जो आप समझे हैं, मेरा उससे बिल्कुल भी कोई ताल्लुक नहीं आपके ज़हन के मुताबिक। अगर आप बिल्कुल भी वो मतलब इंग्लिश के मेरी चार लफ्ज हैं, सॉरी वो कह दे, सॉरी SORRY, सॉरी। जज़ाकल्लाह, जज़ा। आमिर साहब प्लीज। ठीक हो गया मलक साहब, मैं बिजी हूं, लोग फिर गल करेंगे। अब लागे करो, बहन की दीदी है यार, इतनी सी बात है। लागे करो मलक साहब, अब जो इस आमिर नज़ीर साहब 600 यूरो का पता करना है मलक साहब, 600 यूरो लेना है। जवाब 600 यूरो कोशिश शायद तो दियो सानू, कोई ना कोई चीज मलक साहब जो इन्होंने एक शातमियत की है आमिर नज़ीर साहब ने अपनी ब्रॉड पे, मलक साहब मैं बिजी होने लगा, फिर आना इंशाल्लाह को ये उतरने लगा। मलक कैसर साहब अपनी ब्रॉड ऑन करो, मैं आना फिर। ओके ए ना दी हाल है ओ मेनू ते कुड़ी दे जांदे आ मलक अवान साहब अपनी शातमियत का जवाब नहीं देना, अपनी शातमियत नादिम नहीं होना। ओ तेरे मिर्जे कुड़ी दित्ती है मुबारक, ओ तेरे मिर्जे कुड़ी दित्ती है मुबारक, ओनु शोनु ओनु बादशाह नु नवाब मोहम्मद खान नु और को परवाए तेरे मिर्जे ने ओ कुड़ियों ने दित्ती है यार। ओ मिर्जे निक्की कुड़ी दित्ती है, निक्की सारी कुड़ी मासूम कुड़ी ओ दे के 4 साल ओ नवाब मोहम्मद खान ने की मुबारक बेगम चाह के उनको मुबारक लिया कुड़ी नु और तेरे मिर्जे ने मुबारक बेगम चाह के नवाब दे के उनको परवाया और ठंड पे गब्बर करवाया उनको मुबारक गब्बर आया और तेरे मुबारक बेगम मिर्जे का जाने हराम दे दी भैन नु जाना हराम दे बोलो। मलक साहब मलक अवान साहब आ जेड़ा बोलदा ना मेरी भी भैन नु लुल्ले चाड़े। हेलो ਹੁਣ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮੁਕਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆ ਓਏ? ਇਹਦੀ ਮਲਕ ਦੀ ਮਾਂ ਮੁਕਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆ? ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮੁਕਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆ? ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੱਟ ਆ, ਮੈਂ ਫਲਾਣਾ, ਮੈਂ ਢੀਂਗਾ, ਭੈਣ ਤੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਮੋਚੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਮੀ ਕੰਮ ਹੈ ਤੂੰ ਤੇ
ਤੇਰੀ ਹਰਕਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਨੇ ਤੂੰ 600 ਯੂਰੋ ਖਾ ਕੇ ਤੂੰ ਨਸਿਆ ਹੈ ਕਰਨੇ ਕੇ ਜੱਜੇ ਵੀ ਤੂੰ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਫੁੱਦੇ ਚ ਲੁੱਲ ਅੱਗੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਨਸਿਆ ਹੈ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਲੁੱਲ 600 ਯੂਰੋ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਫੁੱਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਬਾਹਰ ਕੱਢਨੇ ਨੇ ਕੁੱਤੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਉਹ ਭੈਣ ਯਕਾ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ ਗੰਦੀ ਨਸਲ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਹੱਥ ਬਾਹ ਤੇ ਫਿਰ ਮਲਕ ਉਹ ਤੇਲੀ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਸਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਫੇਰਾ ਪਾ ਲੈਂਦੇ 600 ਯੂਰੋ ਵੀ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਮਲਕ ਅਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਆ ਤੇਰੀ ਮਲਕ ਇੱਥੇ ਬੁੰਡ ਮਰਾਏ ਕੀ ਕਰੇ ਮਲਕ ਨਾ ਹੀ ਦਵੇ ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਏ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਗਈ ਏ ਓਏ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਇਹ ਹੱਥ ਰੱਖਦੇ ਨਬਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਸੌਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਓ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਬੈਠੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਬੁੱਢੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰੀਖ ਆਂਦੀ ਏ ਤੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਮਿਆਂ ਪੈਣਾ ਛੱਡ ਦਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ यार वो बात हो गई खत्म हो गई ना भाई वो नहीं मलक साहब ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਸਤਾਹੀ ਸ਼ਾਤਮੀਅਤ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਮਕਸਦ ਸ਼ਾਤਮੀਅਤ ਕਰਨਾ ਵੇ ਨਬੀ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਲਮਹਾ ਆਪਣੀ ਉਮਤ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਵੇ ਉਹਨੇ ਹਰ ਲਮਹਾ ਆਪਣੀ ਉਮਤ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੰਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੰਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਲੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤੂੰ ਨਾ ਬੋਲ ਵਿੱਚ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ ਮਲਕ ਅਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਸੂਬ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ अली हक साहब मैं ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾਓ ਇਹ ਘਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੇ ਬਰਾੜ ਤੁਹਾਡੀ ਏ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਆ ਇੱਕ ਦਫਾ ਕਹਿ ਦਿਓ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੜਾਂਗੇ ਬੋਲਣ ਤੇ ਦਿਓ ਨਾ ਬੋਲੋ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਭਾਈ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਸੌਰੀ ਕਰ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਲਿਆ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੈਂ ਸੌਰੀ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਈਏ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਅੱਗੋਂ ਲਾਜਵਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਨ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਜੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਅੱਲਾ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ ਤੇ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਇੱਕ ਗੱਲ ज़हन में बिठा लो किसी ਦਾ ਅਕਲ ਠੀਕ ਹੈ ज़हनी तवाज़ुन ठीक है मुसलमानों ਦਾ ਕੋਈ ਫਿਰਕਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਬੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਗੁਸਤਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬੇਵਕੂਫੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ बेवकूफ़ी जरूर कर सकता है लेकिन गुस्ताखी नबी रसूल दी खा किसी फिरके नाल ताल्लुक रखता है अपने आप को मुसलमान कहता है वो किसी नबी दी शान विच गुस्ताखी नहीं कर सकता ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਵੀ ਤਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਸ਼ਾਤਮੀਅਤ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਹਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਸ਼ਾਤਮੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ वो श्रीलंका वाला वाकया होया पाकिस्तान दे विच आपकी बात बिल्कुल ठीक है ये तो अभी इधर बैठे हो ना ये कहीं अगर हम इकट्ठे बैठे होते तो अभी 2-4 बंदे मर गए होते गुस्ताखी रसूल के नाम पर जी हाँ जी बिल्कुल लोग हैं जाहिल लोग हैं इन्हें पता ही नहीं है मुखालफत में और मलक साहब और दूसरी बात ये है कि देखे ਤਲਤ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ 20 ਰਿਕੁਐਸਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਚੁੱਕਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤਲਤ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗੌਸ ਪਾਕ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਹਦੀਸ ਲਾਈ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਬਈ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹਦੀਸ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਤਮੀਅਤ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਹੀ ਨਾ ਛਾਪੋ ਜੇ ਅਗਰ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮਦੀਆ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤਰਜਮਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰਜਮੇ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖੋ ਅਹਿਮਦੀਆ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਦੱਸ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ 85 ਕੀ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਲਿਖੇ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਦੱਸ ਜ਼ਰਾ मेरा कोटा पूरा हो गया अली हाकम मेरा कोटा पूरा हो गया बस करो ਉਹ ਮੁਨਾਫਕਾ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾ ਤੂੰ ਨਾ ਬੋਲੀ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕੋਟਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੁਨਨਤ ਹੀ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਜੇ
ਮੈਂ ਫਿਰ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਲਾਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾ ਦਿਆਂਗਾ। अस्सलाम वालेकुम। ਕਰੋ ਸੁਨਨਤ ਦਾ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। हेलो जी जी भाई, देखे ना जो हदीस पढ़ी है ना, वो हदीस किस किताब की है, किसने लिखी है, इस चीज का तो कुछ बुखारी बताना हमें। 302 बुखारी 302 है भाई। जी जी 302 लगा रही है, उसी वजह से ਕੁਛ ਕਰੋ ਨਾ ਲੱਖ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨ 85 ਦਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵੀ अली भाई 1 मिनट मेरी यार एक सेकंड मेरी गल सुने, देखो 1 मिनट मेरी गल सुने, ਹਰਾਮੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਬਕਵਾਸ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿੰਨੇ 1 मिनट मेरी गल सुने, 1 मिनट मेरी गल सुने। देखो ਤਰਜਮੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਹਿਮਦੀਆ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਹਿਮਦੀਆ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੇ भाई ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਕੀ एक ही है ਸ਼ਾਤਮੀਅਤ ना, ਕੀਤੀ है। ये तो जिस दिन की एक है ना सर, हनफी से हुआ ना, कायदानी भी तो हनफी से लिया ना उन्होंने इल्म। हनफी बात तो एक है ना इनकी। एक ही है सारे, एक ही है, इनकी बस थोड़ा बहुत फर्क है, बाकी गालियाँ भी एक जैसी देते हैं, ठीक है, और माओ बहनों पे भी एक जैसी सारी इनकी एक ही आते हैं, ये कोई फर्क नहीं है, आप चेक कर लें, दोनों ऐसी गालियाँ देते हैं, वो उसकी माँ पे चढ़ता है, उसकी पे चढ़ता है, मैंने जो देखा है ना, फर्क नहीं है इनमें। भगवान और उसके जो साथी है ना, वो और सरकारी मुसलमानों में कोई फर्क नहीं है। इनको ये लोग इल्मी लिहाज से बनाया था ना, बिल्कुल ही डिस्कनेक्टेड है, और जब दलील से बात करो आगे दलील होती नहीं है तो टॉन्ट करने पे आ जाते हैं, बातें करने पे आ जाते हैं, एक दूसरे को नीचा करने की कोशिश में आ जाते हैं। एक मिनट ये दिन क़यामत तक पर बिल्कुल सरकारी मुसलमान और ये जो भगवान के साथी वगैरह जो है ना, एक ही तरह के हैं। इलम तुम्हें टंगा नहीं है, कुत्ते की तरह तुम भौंक रहे हो यहाँ बैठ के। ये जैसा बोले हो ना, ये बिल्कुल सरकारी मुसलमान सब बोलते हैं ना, सरकारी एग्जैक्टली मुसलमान सेम बोल रहे हैं, तुम्हें तमीज ही नहीं है बात करने की। दलील जिनके पास नहीं होती, दलील जिनके पास नहीं होती, वो इसी तरह बक बक करते हैं। अली भाई ताकि भाई गाली नहीं निकालो, नहीं तो देखो दो तर्जमे गाली नहीं वो मसाकी आई बेचारा गाली बात गाली ना मलक साहब ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ ਯਾਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਮਿਸਾਕੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਅਲੀ ਹੱਕ ਦੇ ਦਿਵਾਲੇ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਅਲੀ ਹੱਕ ਨਾਲ ਨਿਬੜ ਲੈਂਦਾ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੀ ਹੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਕਾਬੂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੀ ਹੱਕ ਆਪੇ ਨਿਬੜ ਲੈਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਥੋੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਆ अली हक अली हक साकी हो गया, ये सारे एक ही तरह के मिसाकी साहब एक मिनट मुझे दे दे जरा। ट्रूसीकर तूने मुनाजरा करना है मेरे साथ, किस बात में करना है? और नहीं जाहिला नाल नहीं करना, और जाहिल नाल नहीं करना भाई, और जाहिला नाल नहीं करना। तेरे जे बंदे नूं तो कदी मैं चुका ना होते, ऐ ते मलिक मान साहब चुक लेंदे ने, तेरे जे जाहिला इंग्लिश भाई है ना, सरकारी मुसलमान ते मिसाकी हो गया, अली हक हो गया, ए भगवान दे साथी हो गए, एक ही तरह दे ने सारे। We talk together in English, not in Urdu. It's a bad language. जिसका अली हक बोलदा पिया ना, वो हदीस सुना पड़ा है मुझे, ते ए जेड़ा मिसाकी है, एक ही तरह दे गाली ना बको यार, गाली ना बको यार। ये मलिक साहब अली भाई जो है ना, वो गालियां दे रहे हैं। देखो शर्म करो, अली भाई ये ना जो दो है गालियां दे रहे हैं, आप देखें। अली हक बंदे दा पुत्र बन के गाना ना कर। तेरे ਵਿੱਚ ट्रूसीकर जे तेरे ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿਓ अली भाई ये अली हक हो गया, ये मिसाकी हो गया, ये भगवान के साथी हो गए, ये सारे सरकारी मुसलमान हो गए, ये सारे एक ही तरह के। दलील इनके पास होती नहीं, बस गालियां टॉन्ट करना, इल्जामबाजी करना। मलिक साहब ये देखिए, अली भाई गाली ना निकालो, ये देखिए अली हक तेरे जाहिल नाल गल नहीं करनी भाई, अली हक तेरे जाहिल नाल गल नहीं करनी। ट्रूसीकर भाई आप चुप करें यार, मलिक भाई इसको ट्रूसीकर भाई आप चुप करें आप प्लीज चुप उतार दे यार इसको, क्या यार पागल आदमी है। ट्रूसीकर भाई आप म्यूट लगा दे, चुप करो यार, इतनी गालियां। आप सारों को अटैक ना करें। भाई ये कौन सी हदीस थी, हवाला दे प्लीज, इल्मी ये बात भाई करो। थी बुखारी की हदीस नंबर 302, उसके तर्जुमे पे इख्तलाफ हुआ है सब। अली हक मेरे साथ मुनाजरा करो यार, प्लीज अली हक मेरे साथ मुनाजरा करो।
लिखा किसने, लिखी किसने? आलम देवबंद। मतलब बुखारी रावी साहब कौन ने है लिखी है इसका? ना ये वो रावी, और रावी बड़े हैं, रावी भी में मेरा ख्याल है कुछ 6 रावी हैं इसके साथ। मलिक साहब अपने अली हक को उतार दिया है, इसको मेरे साथ मुनाजरा करवाएं अली का। ये यार वो गालियां बक रहे हैं यार, गालियां बक रहे हैं, किधर जाऊं यार। गालियां बहुत देता है ये अली हक। भाई आप असूल बनाए ना अपनी ग्रुप में, जो बंदा गाली दे दे उसको ब्लॉक कर दो, लेकिन उतार दो। साहब आपको आखिरी वार्निंग है, गाली नहीं दे दो मेरे भाई, ऊपर आ जाओ, गाली ना देना खुदा के लिए। तल्ला साहब इसने इससे लेना क्या आपने अली हक से? और मैं किसी को गालियां नहीं दे के पता नहीं, गालियां दे के ब्रोड खराब कर रहा है। कमान साहब ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, गालियां दे रहा है। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਹਲ ਆ, ਜਾਹਲ ਹੈ, गालियां ना दो ਤੁਹਾਨੂੰ नजर नहीं आ रहा, अली हक जाहल है ट्रोसी करो जी। मालिक भाई उतारो उतारो, कोई गाली नहीं किसी मालिक भाई उतारो इसको। इंसान के बच्चे बनो अली हक, इंसान के बच्चे बनो। तुम इंसान के बच्चे हो, इंसान का बच्चा बन तो हुन जे तू गाल तू कड्डी ना, इंसान है, तू इंसान का बच्चा बन। और मैं क्या तू इंसान है, तू इंसान का बच्चा बन, तू मेरे नाल मुनाजरा कर, मेरे नाल गल कर। कर ले सारी भाई मुनाजरा करना है। मालिक भाई उतारो, तू बम कड्डे है, तू कड्ड बम। मालिक भाई उतारो, तू इंसान का बच्चा बन। मालिक भाई उतारो, मालिक भाई उतारो इसको। इंसान का बच्चा बन, तू वड्डा अली हक करूं बकवास करदा है यार। मैं तू इंसान का बच्चा बन, खोती दे पुत्रा अली हक बहुत छोड़दी दे बच्चे आ, गाला कड्डदा इथे बैठ के। उतार दो यार इसको, क्या है यार ये फितना रखा हुआ है अपना यार। कायदे कौन कौन है घर दे विच कायदे कौन है? कोई कादियानी नहीं है, सारे पाकिस्तानी है। मैं जंगवी हूं। कायदानी तो हो ना, वैसे भी अहले सुन्नत तो कायदे नहीं है ना, तुम लोगों में फर्क क्या है? तो एक ही है ना। तल्ला साहब अस्सलाम वालेकुम, एक मिनट मुझे चाहिए सिर्फ। तल्ला साहब जान रब दी ते वोट जंगवी है। तल्ला साहब आपने जब ये नई दूसरी दफा ब्रोड लगाई है और आमर नज़ीर को ऊपर बिठा के आपने कहा कि जो गालियां देगा मैं उसको उतार दूंगा, तो उसने जमात अहमदिया के अकाबर को गालियां निकाली हैं आमर नज़ीर ने, और आपने उसको बिल्कुल आप नहीं, वो तो अपनी बात मुकम्मल करके माफी मंगवा के क्या आपने कब उतारा? मोबाइल हाथ पड़े थे, मैं दुनिया दे होर काम नहीं पिया करदा नाल यार। नहीं तो फिर ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ नहीं जिम्मेदारी ਤੁਸੀਂ तो मॉडरेटर बनाए ना, फिर मलिक अमान साहब आप मुझे बताएं, छाड़ दो उस गल नू। आप पूरी दुनिया को मॉडरेटर बना देते हैं। आप जो मुझे मॉडरेटर कराए दिए हुए थे, तो मैं जो गाली दे रहा था उसको उतार रहा था। बिल्कुल थ्रू वो गाली गाली बातों की बातें सुन के तो आपने उनको अलाउ कर दिया। नहीं ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਐਵੇਂ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਛੱਡ ਦੋ ਇਸ ਗੱਲ। कभी इसने गाली नहीं किसी को निकाली। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗਾਲ ਕੱਢੇ सैफी भाई एक मिनट, सैफी साहब एक मिनट, सैफी साहब ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਸੂਨ ਮਾਰਦਾ साहब यार चुप करो यार। सीकर भाई बहुत बंदा जो गाली नहीं निकालता। अगर हदीस पे बात हो रही है तो वो जिसने लिखी है उसको यार एक मिनट ठहर जाओ, एक मिनट ठहर जाइए यार, चुप यार, एक मिनट ठहर जाइए यार, एक मिनट ठहर जा, सारा दिन तू इथे बैठा है, एक मिनट बैठ जा, ठीक है। अगर हदीस में कोई गलत बात लिखी हुई है तो वो जिसने लिखी है वो तो पढ़ रहा है, उसने क्या किया है, उसने अपने पास से कोई तहरीर बनाई है। भाई चुप हो जा, खौफ कालो गालियों के सिवा आपके पास है ही कुछ नहीं। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਜੋ ਫੀਡ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਲੇਲਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਟੁਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਕਦੀ ਸਵਾਲ ਲਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਨਾ ਕਦੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ। ਕਿ ਇਸ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੋਲੋਂ ਜੁਰਤ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਮੌਲਵੀ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਵੇ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੌਲਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਰਤ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਸੀ ਬੇਵਕੂਫੀਆਂ 2-2 4-4 ਘੰਟੇ 2-2 4-4 ਘੰਟੇ ਦੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੱਲੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰੋਡ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਆ। ਉਹ ਕੈਸਰ ਮਲਕ ਇਹ ਔਰ ਅਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਹੁਣ ਉਤਾਰਿਆ ਅਲੀ ਹਕ, ਇਹਨੇ ਗਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਅਹਿਮਦੀਆ ਦੋਨੇ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ ਨੇ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਚਾ ਮੰਨਦੇ ਆ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਮਜਬੂਰ ਨੇ ਉਹ ਭਾਈ ਜਾਨ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦੋ ਯਾਰ ਰੋਣਾ ਤੋਣਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲਓ यार खान भाई बस कर दो यार सर खा रहे हो ਕੋਈ यार ਗਾਲ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਗੱਲ ਖਤਮ ਬਸ लुकमत भाई लुक हमीद भाई हेलो जी भाई मसला क्या हुआ इनका ये से दिमाग ही खा गया मुता मसला पे क्या बात हुआ हो रही थी कायदे सच्चा आलम देवबंद असल में बात हो रही थी इस तरह हुआ है बात हो देवबंद के आलिम साहब आपका फिरका आप बताएं अब मुता का क्या करना है आप चस्का लेने के लिए पूछ रहे हैं ये सारा कुछ और यार मुझे बात करने दो इनसे यार प्लीज यार आप ताकि हम भी हंस लेना बता दें हमीद साहब मुझे बात करने जी जी साहब सच्चा आलम देवबंद भाई मुता पे बात हो रही थी तो मुता हलाल है जायज है जिसने भाई मुता किया उस पे लानत करे ना जिसने शुरू में किसने किया है मुता आप बताए ना किसने किया हमें क्या पता मुझे क्या पता आपने मैसेज में तो लिखा है कुछ कहाँ पे नीचे आपने लिखा है मैसेज में कि नाम भी मेंशन किया है आपने मैं हैरान रह गया ये बात सुन के कि आपने ये कहाँ से निकाली है ये बात कौन सी कहाँ पे लिखा है मैंने यार अभी मैं देख रहा हूँ ना जरा भाई सब्र कर ले आप तो आपका क्या ख्याल है मुता के बारे में मुता हलाल है वाजिब है हलाल है इसका तरीका कार क्या होता है वाजिब कह रहे हैं तरीका कार क्या होता है इसका अम्मी आयशा ने किया है ना भाई ना यार क्या बात कर रहे हो यार हाँ सर रवायत हैं बहुत सारी कोई रवायत पेश करें आप अभी तो मेरे पास टाइम नहीं है बाद में मैं आके दिखा दूंगा क्या मसला है इस चीज में यार फिर आप बात कर रहे हो यार आपके पास है कुछ है नहीं तो ये तो बुरी बात होगी ना ये तो इल्जाम लगा रहे हो आप इल्जाम नहीं लगा रहा आप आ जाना मैं मेरी ब्रोड पे मैं आपको दिखा दूंगा आप अहले तशी हो ना नहीं मैं अहले तशी नहीं हूँ तो आप नहीं देवबंद तो इसको डिफेंडर सिर्फ अहले तशी है और कोई नहीं है देवबंद तो इसको हराम मानते हैं तकिया ना करो सच्चा आलम देवबंद तकिया ना कर मैं तो खुद यार देवबंद हूँ तो ये तो हम तो हराम मानते हैं इसको यार अस्सलाम की है शान देवबंद नहीं एक मिनट है कायदानी और देवबंद में क्या फर्क है भाई है और क्या है भाई है भाई नमाज एक भाई है भाई वो भी नबूवत वो ही फर्क है जो यूसुफ और उसके भाइयों में था नहीं एक मिनट फर्क ये है कि आपका नबी हजरत उमर है हमारा नबी नहीं मैं बता रहा हूँ ना जो हमारे दरमियान बिल्कुल फर्क वही है जो यूसुफ और बरादरान यूसुफ में था नहीं फर्क वो नहीं है ऐसा इतना भी अपने हम बता रहे हैं आप हमें भाई कह रहे हैं हमारी बात माने आप हमारे भाई हैं सर अपने आप को इतना अफजल ना करें क्यों ना करें हद हो गई यार भाई क्यों ना करें वजह बताओ ना इसलिए ना करें हद है यार क्या बंदे हो हजरत माविया को मानते हो भाई क्या मानते हैं मतलब भाई बात सुनो इंसान थे वो एक मिनट भाई देवबंद फिर भाई बात सुनो इंसान भी नहीं थे आप कहो ना फिर आप खुल के कहो आप अपने आप को शिया हूं मैं नहीं ये शिया ही है बात तो सुन लो यार मेरी यार अम्मी सब बात सुने यार हजरत अम्मी आयशा जो है ना अम्मा आयशा हजरत आयशा के बारे में ऐसी कोई रिवायत नहीं मिलती अलबत्ता नरजस बीबी जो है ना उनके बारे में ऐसी रिवायात मिलती हैं 251 उसमें जो दो बंदों के सामने जो उन्होंने नरजस बीबी के बारे में मिलता है कि उनको एक 251 में मैं पढ़ के सुनाऊं तुम्हें वहां पे जो उन्होंने टांगे खोल के दो बात तो सुन लो यार नरजस बीबी के बारे में ये मिलता है यार नहीं मैं आपको हवाला भी दे रहा हूँ ना नरजस बीबी के बारे में मिलता है या नहीं मिलता आप ये बताओ हवाला दो 14 सितारे किताब पढ़ी है आपने 14 सितारा किताब हमारी हुज्जत है हुज्जत है ना तो उसमें यार नरजस बीबी का लिखा हुआ है कि उनको एक बाजार ये दो बंदों के पास किसने इसको इजाजत दी थी जाके चुदवाए मुझे इस चीज का जवाब दें पहले तो यार नरजस बीबी को 50 साल तक यजीदियों ने चोदा है यार फिर तुम्हारा 12वां इमाम पैदा हो गया जिसको अली हक मानता है अली हक उसी का पुजारी है
ਕਿੱਧਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਬਗੈਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆ ਰਾਫਜ਼ੀਆ ਕੁੱਤਿਆ ਬਾਜੀ ਕੁਛ ਮੂਤਾ ਝੂਠ ਕਰ ਬੋਲਦਾ ਰਹੇ ਹੈ ਆ ਬਗੈਰ ਕੁਛ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਹਲਾਲਾ ਕੇ ਕਰ ਸ਼ੀਆ ਰਹੇ ਆ ਕੁੱਤਿਆ ਅਜੀਬ ਹੀ ਮਤਲਬ ਘੋੜੇ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀਆ ਹਜ਼ਰਤ ਅੰਮੀ ਆਇਸ਼ਾ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਣਾ ਹੈ ਕੁੱਤਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਜੀ ਦੇ ਚੱਲਾ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਗੈਰਤਾ ਨਰਜਸ ਬੀਬੀ ਦੇ ਆ ਕੁੱਤਿਆ ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬਸ ਸੁਬੋ ਦਾ ਇਹ ਟਾਈਮ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਉਮਤ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਇਜਮਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਲੀਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਇਜਮਾਈ ਭਰਾ ਸੀਗਾ ਬਗੈਰਤਾ ਉਮਤ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਉਮਤ ਸੁਣ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਬਗੈਰਤਾ ਤੇਰਾ ਇਜਮਾਈ ਭਰਾ ਸੀਗਾ ਕੁੱਤਿਆ ਇਹ ਮਰਜ਼ਈ ਹੈ ਇਹ ਮਰਜ਼ਈ ਸੀ ਕੁੱਤਿਆ ਤੇਰਾ ਮਰਜ਼ਈ ਕੁੱਤਿਆ ਸੂਰਾ ਮਰਜ਼ਈ ਆ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਸੀ ਇਜਮਾਈ ਕੁੱਤਿਆ ਇਹ ਮਰਜ਼ਈ ਆ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕਿ ਕੁੱਤਿਆ 12ਵੇਂ ਇਮਾਮ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀਆ ਕੁੱਤਿਆ ਸੂਰੀ ਦੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਬਗੈਰਤਾ ਸ਼ਰੀਫ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਸੈਫੀ ਕੋਤੀ ਦੇ ਆ ਬੱਚੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਲੈਂਦਾ ਕੌਣ ਆ? ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹ ਫਜਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਨ ਲੱਗਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਚੰਗਾ ਜੀ ਰੱਬ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਖਾਓ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਮੁਖਤਲਫ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅੱਛਾ ਬਰੇਲਵੀ ਭਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੂਰਾਂ ਦੇ ਸੂਰ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੂਰ ਹੈਗੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸੂਰ ਹੈਗੇ ਸ਼ੀਆ ਸੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਾਫਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਿਕਸਚਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਉਮਤ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਇਜਤਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਇਜਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫਰ ਆ ਦੱਸੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੰਨ ਟੁੱਟੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜਨਾਬ ਅੱਛਾ ਔਰ ਉਤੋਂ ਮਜ਼ੇਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆਪ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹੀ ਆ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਗਈ ਤੋਬਾ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਉਤੋਂ ਇਹ ਕਿ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਛੁਡਾਣੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗਲਤ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਨਾਲ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਛੁਡਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਇਸ ਹਦੀਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਤੇ ਕਿਹਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੁਤਸਾਦਮ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਮੁਕੱਦਮ ਰੱਖਾਂਗਾ ਹਦੀਸ ਨੂੰ ਸੈਕੰਡ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਤੇ ਰੱਖਾਂਗਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹਰ ਚੌਖੜ ਤੇ ਸਜਦੇ ਕਰਨ ਦੇ ਇੰਨੇ ਆਦੀ ਹੋ ਗਏ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਸਜਦਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਔਰ ਹਰ ਤਫਰਕੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤਫਰਕਾ ਹੋਵੇ ਫਸਾਦ ਹੋਵੇ ਫਸਾਦ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਇਹ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬੇਜਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਈਵਨ ਕਿ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਲਾਸ਼ ਬਚਾ ਕੇ ਨੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਲਾਨ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਜਾ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਪਨਾਹ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਬਸ ਇਸਲਾਮ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਸੁਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਮੌਲਵੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਅਮਲ ਜਿੱਥੇ ਅਮਲ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਵੇ ਉੱਥੇ ਬਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਸਿਰਫ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜਨਾਬ ਆ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੰਗਾ ਇਹ ਰੋਜ਼ੀ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਗੈਟਅਪ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮੌਲਵੀਆਂ ਵਾਲਾ ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਇੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਫਟ ਵਗੈਰਾ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਲੀਮਾਤ ਸੁਣੋ ਖੁਦਾ ਦੀ ਪਨਾਹ ਇਹ ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਆ ਉਹਦੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਾਤਮੀਅਤ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਮਲ ਤੋਂ ਵੀ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਹੁਣ ਸਕੂਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂ ਤੁਰਸ ਸੀਕਰ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੋ जी मैं तो जो पहले बात कर रहा था जब नासिर साहब मौजूद थे मैं असल में
उसको समझने की कोशिश कर रहा था कि आप ये देखिए हमारी कितनी अच्छी डिस्कशन चल रही थी हैं, एकदम से ये अपना ये हमलावर हुए हैं और पूरी ब्रॉड ही हाईजैक कर ली। असल में ना पता क्या है, मैं कई दफ़ा कुछ ऐसे सेशन हो रहे होते हैं कि जहाँ पे मेरी ये कोशिश नहीं होती कि मुनाजरा करूँ, कोशिश ये होती है कि डिस्कशन करके कोई बात समझने की कोशिश करूँ, कोई मेरे जहन में कोई बात आती है तो वो प्रेजेंट करूँ और अगलों से उसके बारे में पूछूँ कि वो क्या समझते हैं। तो वो डिस्कशन सेशन होता है तो वो नासिर साहब से मैं यही समझने की कोशिश कर रहा था, तो उसमें वो जो आयत थी वहाँ पे जो ये था कि मोमिनों का तरीक़ इख्तियार करो, उस पर मैं तवज्जो दे रहा था कि इसका क्या मतलब हो सकता है, क्योंकि ये जिस तरह ये लोग हैं, ये बनी इसराइल वगैरह, ये सारे ये बहुत ही डिस्कनेक्टेड हैं हर चीज़ से। ये सिर्फ कहते हैं कि जी ना ये ग्रामर को मानते हैं ना ये नहीं असल में तो सीकर भाई जो इनका नहीं, इनके होते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन क्योंकि इनकी कोई भी इबादत या जो कुछ ये कहते हैं ना एक दफ़ा वो लिखी हुई नहीं है, क्योंकि लिखी हुई अगर चीज़ हो ना तो इंसान जैसे मर्जी जाए वो घूम के फिर वो लिखी हुई चीज़ पे आ जाता है। सिर्फ ये एक प्रॉब्लम है, बाकी वो है कि आज मैंने फ़र्ज़ करें सुबह मैंने कोई बात की, उसमें कुछ अल्फाज अदा किए, आपने वो उससे कुछ अटेंशन ली, वो फिर शाम को चेंज हो जाएंगे, वो अल्फाज जो है ना आगे पीछे करते रहते हैं क्योंकि लिखे हुए नहीं है ना, ये इस वजह से इनका कोई मतलब, बाकी ये इनकी अंडरस्टैंडिंग ठीक है, कोई मतलब ऐसा नहीं बंदा कह सकता कि कई चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग इनकी बड़ी अच्छी है, लेकिन इनसे मैं डिस्कस करता हूँ बड़ा कई दफ़ा अच्छी बात समझ आती है, लेकिन फॉर सम रीज़न ये बाज़ का पता नहीं क्यों टॉन्ट करना शुरू कर देते हैं। ये हालांकि आप डिस्कशन कर रहे हैं, पुराना ब्रेल भी देवबंदी जाग जाता है ना फिर वो अंदर वाला। को अपनी को सेक्रीफाइस कर देते हैं, इज्जत को, दौलत को, शोहरत को, जान को भी, किसी चीज को भी नहीं वो पीछे छोड़ते हैं। और वो दुनिया में सबसे ज्यादा ताकत वाले होते हैं, उनकी इज्जत सबसे ज्यादा होती है, उनका खुदा ताला से प्यार ज्यादा होता है, वो उनके नाम को खुदा कैसे जिंदा रखता है। तो ये वो जो कुर्बानी की फिलॉसफी है ना, ये उसने अपनी सिफ्त रहमान के साथ जोड़ी है। जो लोग इसमें ज्यादा हिस्सा लेते हैं इस रहमान की सिफ्त में, उतने वो ज्यादा कामयाब हो जाते हैं जिंदगी में और वो खुदा के करीब हो जाते हैं। वो मुकाबलों में और इस तरह के झगड़ों में इन्वॉल्व नहीं होते और वो हर वक्त इस कोशिश में होते हैं कि मैं क्या ऐसा काम करूं, क्या ऐसी चीज पेश करूं अपनी सलाहियतों में से जिससे खुदा मेरा खुश हो जाए। तो ये मैं समझता हूँ कि ये इस तरह ऑपरेटिव है होना चाहिए इंसानों को। जी अगर कोई बात है ऐड ऑन करनी है आप कर सकते हैं। मैं सिर्फ यही ऐड करूंगा कि जितनी हमने कॉन्वर्सेशन की है, मैं कमालाते भाई शायद समझ रहे हो कि कोई क्रिटिक या अपोज कर रहे हैं। बेसिकली मुझे जब समझ लग जाए ना कि अगला इंसान बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट पेश कर रहा है, तो फिर जो छोटे छोटे सुराख जो बंदे को फील हो रहे होते हैं कि इसको मैं ज़रा हाईलाइट करूं ताकि ये भी पूरा और एक सतही तौर पे एक अच्छी चीज़ सामने आए। तो माशाल्लाह बड़ी अच्छी कॉन्सेप्ट एट द एंड समझ लगी है और ठीक है, मतलब फाइनल तो मैं घर आ गया हूँ, तो आते ही मुझे घर से ऊपर से आवाज आई है कि अब बस कर दें, काफी हो गई, अब सो जाए। तो चलें, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अगर कोई जी अगर ऊपर नीचे बात हो गई हो तो माफी का तलबगार हूँ। नहीं ऐसी नहीं बात, हम आपसे माजरत करते हैं, आप मुझे अपने से ज्यादा लगते हैं, इल्म में भी उम्र में भी बड़े। आप माशाल्लाह आपका भी इदराक बहुत अच्छा है, मजा आया आपसे बात करने का। कुरान शरीफ आपने बड़ी, अब मुझे वो बता, मैं ज्यादा उसको दिल मेरा उसकी तरफ रागब होता है जो कुरान शरीफ की बात करता है, और आप मैंने देखा है कि कुरान शरीफ बहुत कोट करते हैं, इसलिए मेरे दिल में आपके लिए एक खास है। और ये मैं कोई ऐसे नहीं दिखाने के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे खुद कुरान शरीफ को जो है ना वो पता नहीं सीखना कहाँ तक है, लेकिन पढ़ने का मुझे है कि इसको पढ़ा जाए।
اور یہی آج کے دور میں جو ہے نا میں سمجھتا ہوں. تو آتے رہا کریں. اب آپ کو کیونکہ آرڈر آ گئے ہیں تو میں نہیں چاہتا کہ مزید جو آرڈر آئے. جزاک اللہ. السلام علیکم. جزاک اللہ. وعلیکم السلام. جزاک اللہ نصر بھائی. اچھا السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کمالاتے بھائی میں نے بہت اچھی باتیں 2-3 سیکھی ہیں جو میرے ذہن میں تھی, اور وہ سیکھنے کی وجہ یہ ہے کہ جب تک ہم آپس میں ہلکا سا کرٹک پوائنٹ پہ نہیں نہ جائیں گے تو چیزیں سامنے آئیں گی نہیں. ہم اگر ایگری کرتے رہیں گے تو وہ گفتگو ادھر ختم ہو جائے گی. لیکن ایٹ دا اینڈ دیکھیں ہم نے کتنی خوبصورت ایگریمنٹ پہ پہنچے اور کتنا مضمون کھل کے سامنے آیا. جی اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ ہر ایک کا لیول آف گریسپ جو ہے نا جواد بھائی وہ ڈیفرنٹ ہے. مثلا آپ بعض دفعہ بات کریں گے نا, آپ ابھی شروع ہی کریں گے نا بات تو